Sir, I have a question. If you're available to answer, could you please do that? Yes, roll number Sir, 120, Tanvi. yes, sir. Sir, could you please tell the name of the book? कि जैसे क्लास आपका एंड होगा ना तो मैं बता देता हूँ आपको बुक्स के नाम, ठीक है? Okay, sir. Thank you so much, sir.
Good afternoon, everyone. So, in last class, we discussed about the operations over the independent parameters in case of discrete time signals. Today, we will carry forward that discussion because we have completed one part of the operations that we can perform over a signal. For example, we have completed a discussion on operation over independent variable. Second thing that we can, or the second way through which we can operate over a signal is known as operation performed on the dependent variable, that is on the y-axis parameter. So today we will discuss the operations performed on the dependent variable, that is the y-axis parameter. So as you can see from the slide, there are different operations that we can perform over the dependent variable, that is the y-axis parameter, and generally on the y-axis the amplitude of the signal is plotted. So the first operation that we can do is the scaling operation, that is amplitude scaling. So suppose if we have a signal x of t and we multiply it with some scaling factor, say capital A, so that we get a new signal, say yt, where y of t can be written as a into x of t, then this is known as scaling operation over the input signal, that is x of t. Similarly, if you have y of n, where y of n is the output of output of a system, where the system does scaling operation over the input signal, that is x of n, and multiply x of n with a scaling factor, that is capital A, then that is known as amplitude scaling. So for example, say this is the input signal, that is x of n. It is a finite data sequence which exists from -2 to say +1. At -2, the magnitude of the amplitude of the signal is -2. At -1, the amplitude is -1. At 0, the amplitude is +1, and at 1 is the amplitude of the signal is equal to 2. For rest of the values greater than this particular interval value, the amplitude is 0, and also for lesser than -2, the amplitude is also equal to 0, right? So let us see what is the scaling operation. Let us obtain twice of x of n, right? That is, we are now not operating on the this term. जो bracket में term है उसपे ऊपर operate नहीं कर रहे. जो bracket में जो term है वो it is a parameter on the x-axis, and as we are discussing operations over the dependent variable, that is a y-axis parameter only, it means that the amplitude of the signal is going to be affected. So when we multiply it with the say 2, where 2 is the scaling factor, then the amplitude of the signal increases. For example, at 0, that is when n is equal to 0, the sampling, the element has a magnitude or amplitude is equal to 1. So when we multiply it by 2, then the amplitude becomes equal to 2 now. Similarly, at n is equal to 1, the earlier amplitude is equal to 2. Now, after the operation being performed, the output signal has a magnitude equal to 4. Similarly, at n is equal to -1, earlier the magnitude was -2. Now, after the operation, that is the amplitude scaling, where we are multiplying the input signal by 2, the amplitude at n is equal to -1 is now equal to -2. Similarly, at n is equal to -2, it is equal to -4, which is 2 times the magnitude of the input signal, that is x of n. So that is known as amplitude scaling. We have not performed over the independent variable. Independent variable earlier was starting from -2 and ending at +1. Similarly, the output in the output side, that is twice of xn, the signal is again starting from -2 and ending at +1, and the number of elements also remaining same. That is, 4 elements are there. 4 elements are also in the input sequence. So we are not carrying out any kind of operation over the independent variable. Only the dependent variable is changing its characteristic, and in this case, the amplitude of the input signal is scaled by a factor of 2, right? So that is known as amplitude scaling. So if you have any question, then you can ask. Second is addition. That is how to add two different signals. Again, it is a operation over the dependent variable, as independent variable does not get affected in this case also. So assume that you have two signals, that is x1t and x2t, and you want to add these two signals so that you can get a new signal. So you can simply add these two signals and their amplitude will be added at respective points according to the x-axis parameter. So similarly, if you have a discrete time signal, say x1n and x2n, and you want to add these two signals to obtain a new signal, then you have to add all the respective samples in the x1 with x2n to obtain the
new signal. So again, let us understand it with the help of an example. Say we have x1n. X1n start from -3 and ending at +3, right? It has a magnitude at n is equal to -3. The amplitude is equal to say 1, right? At n is equal to -2, the amplitude is 0. At n is equal to -1, the amplitude of the element is equal to 1. Amplitude of the element which is present at n is equal to 0, the amplitude is equal to 0. For the element which is present at n is equal to 1, the amplitude is 1, and so on. Similarly, you have another signal x twice of n, sorry, x2n. It starts from -3 and end at +3. At -3, its magnitude is 0. At -2, the magnitude is, or the amplitude is -1. At n is equal to -1, the amplitude is equal to +1. At n is equal to 0, the amplitude of the signal is equal to 0. At n is equal to 1, the magnitude is -1, and so on for the values of n is equal to 2 and 3. So now, how we do the addition? We will do the addition according to the occurrence of the elements. That is, the respective elements will be added up only, and you cannot add a sample which is present at n is equal to -3 to another sample of the signal which is present at n is equal to -2. So only the respective samples are being added. For example, say at n is equal to -3, here the magnitude is equal to 1, and in this case, that is of x2n, the magnitude of the signal or the amplitude of the signal at n is equal to -3 is 0, right? So we will add the amplitude of the signal at n is equal to -3 of x1n with the amplitude of the signal of x2n at n is equal to -3 only. So 1 plus 0, that is equal to +1, right? We are not going to add the n-3 sample with n-2 sample of x2n. सिर्फ रिस्पेक्टिव सैंपल्स की ही एडिशन होती है. ऐसा नहीं कि आप एक सिग्नल का जो है वो सेकंड एलिमेंट ले लो और दूसरे का जो है फोर्थ एलिमेंट ले लो और उनको ऐड कर दो. ऐसा नहीं होता. एलिमेंट जो है वो अपनी रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही ऐड अप होते हैं. So at n is equal to -2, the signal magnitude is for x1n is 0, whereas in the case of x2n, the value of the amplitude of the signal at n is equal to -2 is equal to -1. So -1 plus 0, that is -1. So in this way, all the samples are being added up, and you will get a new signal, that is yn is equal to x1n plus x2n. So this is how we perform the addition. So if you have any question, then you can ask. Is any question? So, okay, let us move to the third operation that we can perform over the dependent variable, that is the multiplication. So multiplication is again occur according to the place value of the signals, and respective elements are being multiplied. So again, take the example of x1 and x2n. The signals that are being plotted here, ये दोनों सिग्नल जो हैं ये हमने प्लॉट कर रखे हुए हैं, इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं. So at n is equal to -3, the amplitude is 1. At n is equal to -3, amplitude of this signal is equal to 0. So 1 multiplied by 0, that is 0. Similarly, 0 multiplied by -1, 0. 1 multiplied by 1, amplitude is 1. 0 multiplied by 0, resultant is 0. 1 multiplied by -1, the resultant is -1. 0 multiplied by 1, that is 0. 1 multiplied by 1, the resultant is 1. So this is how we do the multiplication of two different signals, right? So sample wise multiplication is carried out. Only the nth sample of a particular signal, that is x1n, will be multiplied with the nth sample of the x2n. You cannot multiply nth sample of x1n with mth sample of the x2n, right? So only respective samples can be multiplied. So this is about the multiplication. So this is all about the operation over the dependent variable and the independent variables. So we have completed this sub-article, that is the operation over the independent and dependent variable. Now let us move towards another important important way of characterizing signals and as well as systems. That is with the help of differential and difference equations, right? So what is differential equations and what is differentiation equation? Difference equation, sorry. So differential equations are generally applied to the CT signal,
यू नो अबाउट द सीटी सिग्नल, हमने काफी डिस्कशन कर लिया है पिछले जो आपके 2 लेक्चर्स हुए हैं उसमें सीटी सिग्नल्स के बारे में हमने डिस्कशन काफी कर लिया हुआ है. सीटी सिग्नल्स आर दो सिग्नल which are continuous in nature and they exist for all the values of the time parameter. So these are known as continuous time signal. So for continuous time signal we have the differentiation or differential equations to describe the behavior of the system. And if you have a DT signal or a DT system, then we use we take the help of the difference equation to describe the behavior of the system or the relationship between the input signal and the output signal, right? So let us understand it with the help of an example. Suppose we have a circuit shown in this figure, that is we have a resistor and inductor connected in series, and to this series combination we have applied a voltage source Vt, right? Now we know that the resistor and inductor, that is R and L, they are linear components, and they are electrical components, and they are linear components, that is R and L, that is the resistance and inductor, and sorry, resistance is a linear component, and inductor has a different relationship with respect to the voltage and current, and that can be defined with the help of linear differential equation. Whereas in case of R, you can simply have a proportionality equation, that is V is equal to I into R. That is the voltage across the resistor will be equal to V is equal to IR. Whereas in the case of inductor, again it is a linear system, but the relationship between the or linear element, the relationship between the voltage and current is defined with the help of differential equation, which is a first order linear equation or first order linear differential equation, that is V is equal to L into di by dt. So we have two components, that is one is resistant and another is inductor. Say IT is the current flowing through these elements because of the application of the voltage source Vt. Then the behavior of this complete system can be defined with the help of this equation, that is Vt is equal to R into IT, right? That is a voltage drop across the resistor plus L di by dt, right? So this is the mathematical equation with the help of which you can describe the working principle of the given electrical circuit. It clearly shows that we have two elements, one is resistor and inductor, and a resistor has a voltage drop which is equal to R into IT, because on the left hand side we are writing voltage. So it means all the parameters which are written on the right hand side of the equality must be voltage, right? Or the units of their units will be volts, right? So voltage is equal to voltage plus voltage, right? So this is the input voltage, and these are the voltage drop across two different elements. One is resistor, another is inductor. We have written here I as a function of t, that is the current. The current in this case is changing with respect to the time, right? So otherwise जो voltage है वो inductor के across zero हो जाती. अगर आप I as a function of t नहीं लिखते हो, simple I लिख देते हो, it means I is constant. कोई 5 एम्पेयर या 10 एम्पेयर उसकी वैल्यू रह रही है, या 1 मिली एम्पेयर रह रही है, वो चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ. डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट थिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, that is it is not changing with respect to the time, it will be equal to zero. So the voltage drop across the inductor will become equal to zero, and only the resistor is getting the advantage of the input voltage. So in this way you can do the analysis of the electrical circuit with the help of this differential equation. So this is about the CT system, that is with the help of a continuous time signals you can, and with the help of the mathematical expressions of the differential equation, the first order linear differential equation, you can relate the output parameter with the input parameters, right? And you can write a differential equation. So this is for the CT signal and systems. Next, what is happening in the case of DT systems and DT signals? In case of DT system, the behavior of the DT system can be characterized with the help of difference equation, right? For example, say yn is equal to xn minus 1, right? So this is the equation, and from this equation you can obtain certain inferences. कौन से inferences आपको मिलते हैं? यही मिलेगा कि जो सिग्नल है, जो ये इक्वेशन दे रखी है, वो किसी डिस्क्रीट टाइम सिस्टम की दे रखी है, क्योंकि इसमें हमारे पास एक तो yn सिग्नल है which can be interpreted as an output signal, and then there is another signal that is xn, and the value of yn is dependent upon xn,
राइट। ये चीजें जो है वो काफी इसमें इक्वेशन में जो है वो आप बोल सकते हो कि ऊपर के आ रही हैं, एंड दीज आर द इन्फ्लुएंसेस दैट यू कैन obtain, that is yn has its behavior dependent upon xn and xn minus 1. So it must be, yn must be output of the system, and xn minus 1 may be the input of the systems, right? So and the system must be dt because it is processing the dt signals only, क्योंकि आउटपुट भी dt है और इनपुट भी dt है. It means the system must be dt in nature. That is a discrete time signal. So now what is xn? Xn is the present input and yn is the present output. And what is this xn minus 1? This xn minus 1 is a delayed input. जैसे आप फीडबैक लेते हो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, ऐसे ही जो है xn को जो है वो डिले किया गया है कुछ यूनिट से, राइट? मान लो 1 सेकेंड से या 1 टाइम यूनिट से उसको डिले किया है, एंड यू गेट xn minus 1. और उस डिलेड वर्जन को इनपुट सिग्नल जो प्रेजेंट इनपुट है उसमें से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है. दैट इज व्हाट द सिस्टम इज डूइंग, राइट? तो डीटी सिस्टम क्या कर रहा है, वो आप इसका एक ब्लॉक डायग्राम भी बना सकते हो. आपके पास एक ब्लॉक है, राइट? तो इसमें आपके पास जो है एक आपके पास एक सिग्नल है. इस पे तो नहीं बनेगा. ओके, लेट्स सी. So let us say we have a DT system. This is a block of a DT system, and say we are applying a signal x of n, right? हम कोई सिग्नल इसको अप्लाई कर रहे हैं. This is x of n signal which is being applied as an input signal to this DT system, right? And the output of the system is equal to yn, right? So this is the output of the system, which is say equal to y, and it is again a discrete output, right? So here the system we are saying that yn is equal to xn minus 1, right? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से एक सिग्नल जो है एक ब्रांच हम ले सकते हैं और यहाँ पे कोई हम डिले एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे एक डिले एलिमेंट हो गया which is say delaying the signal by some t unit. t unit से उसको डिले कर रहा है. ठीक है, जब इसका आउटपुट आएगा, this is the output, and for this we can write this, the output will be equal to, क्या आउटपुट आएगा इसका, x of n माइनस क्या लिखेंगे, x of n माइनस t, ये आपके पास आ जाएगा. ठीक है, एंड वी आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग. क्या कर रहे थे हम, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, राइट? तो यहाँ से एक हम इसमें एक ब्लॉक ऐड कर सकते हैं, इसको हम समिंग ब्लॉक बोल सकते हैं. और यहाँ पे ये सिग्नल जो है एज ए इनपुट सिग्नल आ रहा है, और जब ये सिग्नल इस ब्लॉक में एंटर हो रहा है तो यहाँ पे हमने इसको नेगेटिव साइन दे दिया. दैट इज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट it will be xn minus capital T. That is yn will be equal to xn minus 1. So this is how the system is behaving. जो अभी हमने इक्वेशन डिस्कस की थी, जो yn is equal to xn minus 1. So in this way the system is behaving. It is taking an input signal, and once it takes that input signal, then it is delaying that signal with respect to time, and there is a delay of 1 unit, that is capital T is equal to 1 in this case. So this is how we take the help of differential equations for CT signal and the difference equation for DT signal, right?
So dt signal will always be described with the help of the difference equation, and ct signal will be described with the help of differential equations. Similarly, you can do the integration of the ct signal also. इसको हम accumulation भी बोलते हैं discrete time signals के केस में. तो जैसे हमारे पास ये yt is equal to integration of, that is output signal is the integration of x tau d tau. So you can integrate the dt signal also. For example, say instead of RL circuit, say we have RC circuit. So ये भी आपने पढ़ रखा होगा. For we can write the mathematical equation for this circuit as Vt is equal to Rit plus 1 by C integration of it dt, where the integration is from minus infinity to small t. Why the sign is minus infinity? Why we are starting from minus infinity? Just anyone? 105, roll number 105. 105. Roll number 80. Priyansh. Sanchit. Sanchit Tiwari. Sanchit Tiwari. Sahil 96. Sahil. Shivam Kagra 109. यस सर. ये शिवम आप बताओ भी उसमें इंटीग्रेशन में हम नेगेटिव साइन से क्यों शुरू कर रहे हैं? जो लोअर लिमिट है वो माइनस इंफिनिटी से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि सर इनिशियल में तो वो चार्ज होगा नहीं ना कैपेसिटर पे. इनपुट पे नहीं सर, इनिशियली तो कैपेसिटर पे कोई चार्ज होगा नहीं ना. नहीं, हमने माइनस इन्फिनिटी से साइन लिया ना, जीरो से ले लेते फिर अगर इनिशियली कोई चार्ज ना होता तो. उस इक्वेशन में अगर आप देखोगे उसमें लिखा है Vt इज इक्वल टू R इंटू आई टी 1 प्लस C 1 बाय C इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू T आई टी डी टी. तो इक्वेशन तो T से स्टार्ट हो रही है ना, Vt आई टी हमने जो T से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है. तो उसमें T अपर लिमिट तो आ रही है, पर लोअर लिमिट जो है वो हमने माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट किया है. ऐसा क्यों? T से क्यों नहीं स्टार्ट किया लोअर लिमिट, जब बाकी सारे पैरामीटर T पे ही डिफाइंड है? Yes, Vaibhav 123. $129. Vishwa Vijay Singh. यस सर. यस विश्व विजय सिंह, बताओ भाई जो क्वेश्चन पूछा है. सर हम शायद उसका डिलीट भी निकालना चाहते हैं इसकी वजह से. डिलेड और एडवांस तो नहीं रहेगा इसमें कंसेप्ट, कोई और चीज है बताओ. ये तो इंटीग्रेशन है ना. डिले तो होता कि अगर हम एक्स टी माइनस टाउ कर देते, एक्स टी माइनस टी टी नॉट कर देते, एक्स एन माइनस एन नॉट कर देते, वो डिलेड होता. ये डिले नहीं है, ये तो इंटीग्रेशन है ना. $75 पारस गोयल. 91 रिया बंसल. कोई आइडिया नहीं है सर इसका. आइडिया होना चाहिए, आप लोग पढ़ रखे हो ये चीज. तो पहले नहीं पढ़ा इक्वेशन की Vt इज इक्वल टू आर आई टी प्लस 1 बाय C इंटीग्रेशन आई टी डी टी? ये तो कर रखा होगा आपने, +1 +2 में भी कर रखा होगा. मैंने. यस विनीत कुमार आप. ये सर हम ट्राई कर सकते हैं सर. जैसे कि जो अब जब हमने इसको चार्जिंग में लगाया था तो चार्जिंग के पहले जो इनिशियली चार्ज होगा उसमें उसको हमें यस जो विनीत कह रहा है वो काफी हद तक सही है, क्योंकि जो जब हम माइनस से साइन लेके डिस्क्राइब करते हैं इक्वेशन को,
that is the charge across, that is the voltage across the capacitor is equal to 1 by C integration from minus infinity to t it dt. सो इसमें एक तो टी, ये तो प्रेजेंट वोल्टेज है, ये भी प्रेजेंट करंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट करंट की वैल्यू है। तो ये जो इंटीग्रेशन ले रहे हैं ये हम अक्यूमुलेट कर रहे हैं कि जो कैपेसिटर है वो जरूरी नहीं कि हमने जिस टी इंस्टेंट पे वोल्टेज को ऑन किया है। ज्यादातर जब भी आप इंट्रोड्यूस आपने फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स में किया होगा, हम की इंसर्ट करते हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में, ठीक है। आपने ये KCL KVL इनको वेरीफाई करने के लिए अगर एक्सपेरिमेंट्स किए हों, इसमें आपका तो सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में +1 +2 लगी थी या ऑनलाइन हुआ? यस एनीवन? यस, आप क्लासेस लगी थी ये +1 +2 में? +1 मतलब 2019 में, 2020 में हुआ नहीं 19 में हुई, और 19 में तो क्लासेस लगी होंगी। यश, यशिका, पारस, रिया? ऑफलाइन लगी थी सर क्लासेस। हाँ 2019 में लगी होंगी ना +1 में, +2 में तो नहीं लगी? नहीं सर, +2 भी ऑफलाइन ही थी। +2 भी ऑफलाइन थी। ऑनलाइन कब आप 2020 में नहीं? हाँ 20 मार्च आ चुका था तब तक। ठीक है ठीक है, तो आप लोगों ने तो एक्सपेरिमेंट किया होगा कि ये काफी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, आपने बोर्ड देखे होंगे जिसमें वुडन बॉक्सेस रहते हैं और की इंसर्ट की जाती है। किए एक्सपेरिमेंट ये सब चीजें KCL KVL को वेरीफाई करने के, या ओम्स लॉ में भी इस तरह के कई बार बोर्ड होते हैं जिसपे जो है वो की इंसर्ट करते हैं। किया है किसी ने इस तरह का एक्सपेरिमेंट आप लोगों में से? सर रजिस्टर बॉक्स वाला, हाँ रजिस्टर जिसमें बॉक्सेस की होते हैं 1000 और जो की तो आप उनके इंसर्ट 4000। करते हो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप यस सर। उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हो। तो जैसे सचिन यस ने सर। बोला 94 रोल नंबर, तो ऐसे हमारे पास बोर्ड रहते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही की उसमें रहती हैं। जब आपने टी इंस्टेंट पे सिग्नल अप्लाई किया है ना, तो वोल्टेज अप्लाई किया है, तो आपने बेसिकली जहाँ तो सर्किट को ऑन किया है, किसी को स्विच को ऑन किया है और पावर सप्लाई उससे जनरेट हो रही है और ROC तक पहुंच रही है, या फिर पहले से ही पावर सप्लाई ऑन थी और की ऑफ स्टेट में थी जो उसको पावर सप्लाई देनी थी जिसने, आपने टी इंस्टेंट पे वो की इंसर्ट किया है या उस स्विच को ऑन किया है ताकि वोल्टेज जो है इस पाथ के थ्रू भी फ्लो कर सके। तो जैसे आप करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि इससे पहले किसी ने सर्किट को ऑन करके नहीं देखा होगा, आपसे पहले किसी ने एक्सपेरिमेंट किया होगा, किसी ग्रुप ने या किसी और डिजाइनर ने या ऑपरेटर ने जो है वो, जैसे शिफ्ट्स होती हैं इंडस्ट्री में कि अगर मॉर्निंग शिफ्ट है और नाइट शिफ्ट ऑफ है, नाइट शिफ्ट में कोई काम नहीं कर रहा तो अगले दिन मॉर्निंग शिफ्ट में जाके वो जब ऑन करते हैं अपना पूरा इक्विपमेंट ऑन करते हैं, तो वो मॉर्निंग में जब वो ऑन करेंगे तो जो पहले एक दिन पहले जो ऑन कर रखे होंगे, जो कैपेसिटर चार्ज हो रखे होंगे, वो डिस्चार्ज हो रहे होंगे और उनमें कोई ना कोई कार चार्ज जो है अभी भी स्टोर रखा रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस से स्टार्ट करते हैं कि इसको हम इनिशियल कंडीशंस भी बोलते हैं। 0 to T जो है वो आपका इनिशियल प्रेजेंट कंडीशन है। अगर यहाँ -70 की जगह इंटीग्रेशन में 0 आ जाता ना, तो ये आपका प्रेजेंट स्टेट होती। जब आप उसको माइनस में ले चलते हो, -∞ या -5 या -7 -10, तो इट मीन्स आप जो है वो इनिशियल कंडीशंस आपको पता है कि कुछ इनिशियल कंडीशंस थी, उसकी वजह से पहले से ही कैपेसिटर में थोड़ा बहुत चार्ज हो रखा हुआ है, तो उसको अकोमोडेट करने के लिए जो इंटीग्रेशन में साइन है वो नेगेटिव लिया जाता है, सो दैट कि हम, क्योंकि रेजिस्टर तो डिसिपेटर है, रेजिस्टर इज अ डिसिपेटर, राइट, इट कैन नॉट स्टोर एनी एनर्जी, ओनली इंडक्टर एंड कैपेसिटर कैन स्टोर एनर्जी। Capacitor store energy in the form of electric field and inductor store energy in the form of magnetic field, right? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप लोगों ने सभी ने पढ़ा हुआ है, तो उस केस में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करके रखता है। उसमें एनर्जी डिसिपेट होती है लीकेज की वजह से एक प्लेट से दूसरी प्लेट के बीच में, बट वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है और टाइम लेता है, ठीक है, डिसिपेट होने में। तो इसी बीच में अगर कोई दूसरा डिजाइनर या ऑपरेटर आके या स्टूडेंट आके किट ऑन करता है, तो वो कैपेसिटर जो है वो ऑलरेडी चार्ज हो रखा है और वो उसमें उस वोल्टेज को या उस चार्ज को शो करने के लिए या उसको अकोमुलेशन को शो करने के लिए हम ये इंटीग्रेशन माइनस साइन से शुरू करते हैं, ठीक है।
तो ये आपका इक्वेशंस हैं. अगेन यू कैन एक्सप्लेन द कंप्लीट सर्किट विद द हेल्प ऑफ दिस मैथमेटिकल इक्वेशन. सो वी आर डूइंग इंटीग्रेशन ऑफ CT सिग्नल, एंड फॉर DT सिग्नल इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेशन वी हैव द अकोमुलेशन. यहाँ पे हम समेशन यूज करते हैं. yn is equal to k from -20 to plus infinity x of k plus xn, राइट. तो xn जो है आपका प्रेजेंट इनपुट सिग्नल है और yn जो है वो प्रेजेंट आउटपुट सिग्नल है. और ये जो दूसरा एलिमेंट दे रखा हुआ है, जब मान लो k की वैल्यू -5 होती है तो यहाँ पे x -5 आ जाएगा. मीन्स प्रेजेंट कंडीशन अगर n की अगर आप 0 सब्सटीट्यूट करोगे, यहाँ पे 0 सब्सटीट्यूट करोगे, यहाँ पे x -5 हो जाएगा. y0 is equal to x -5 plus x0. मीन्स 0 इंस्टेंट पे जब आपके ऑन की जिस वक्त, उसी वक्त जो आउटपुट है वो इनपुट का, प्रेजेंट इनपुट का फंक्शन है, प्लस जो 5 सेकंड पहले उससे इनपुट अप्लाई कर रखी थी उसका भी ये फंक्शन है. ठीक है, वो उसमें ऐड हो रहा है. ठीक है, तो ये चीज जो है इसको हम अकुमुलेशन बोलते हैं. ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो हैं वो खाली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नहीं यूज होते. बहुत सारे स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस हैं और एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसमें ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल यूज होते हैं. जैसे ये इसमें शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का प्रोसेसिंग होता है, जिससे जो है आप एल्गोरिथम्स प्रिपेयर करते हो और फोरकास्ट करते हो कि आज इस पर्टिकुलर शेयर का वैल्यू इतनी है और एक जो है 2 दिन पहले बाद जो है वो ये वैल्यू रहेगी. ठीक है, उसमें प्रेजेंट उसकी क्या कंडीशंस रही हैं पिछले पूरे साल में, वो शेयर की क्या वैल्यूज रही हैं, वो सब करके एलिमेंट्स करके, क्योंकि वो डिस्क्रीट प्रॉपर नेचर होती है. तो शेयर मार्केट में जो वैल्यूज होती हैं शेयर्स की वो डिस्क्रीट होती हैं, कंटिन्यूस नहीं होती. ठीक है, तो वो ऐसा मैथमेटिकल मॉडल प्रिपेयर किया जाता है जिससे आप किसी शेयर का जो फ्यूचर वैल्यू है वो प्रेडिक्ट कर पाओ. ठीक है, अनसर्टेनिटी तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकते बट सर्टेनिटी प्रेडिक्ट कर सकते हैं. अगर किसी का शेयर किसी पर्टिकुलर कंपनी का जो शेयर है वो काफ़ी एक एवरेज वैल्यू पे चलता जा रहा है तो आगे भी वो एवरेज वैल्यू पे ही चलेगा, ये प्रेडिक्टेबल है. बट सपोज करो कोई अनसर्टेनिटी आ जाए, कोई कोलैप्स हो जाए उस कंपनी का, या उसके जो बैंक शीट है जहाँ से उसने लोन लिया है बैंक से, वो जो है वो अगर वो डिक्लेयर होती है और उसमें जो बैलेंस है वो नेगेटिव में चला जाता है, तो उसी टाइम सडनली वो जो शेयर है उसका जो प्राइस है वो एकदम से डाउन चला जाएगा. तो मैथमेटिकल मॉडल ये अनसर्टेनिटी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, बट ऑन अ होल एक एवरेज स्केल बता सकते हैं कुछ कि अगर कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती तो शेयर का जो प्राइस है वो किस तरह से बिल्डअप होगा या किस तरह से वो धीरे धीरे डिके होगा. तो इस तरह से शेयर मार्केट में भी बहुत सारे डिस्क्रीट टाइम मैथमेटिकल मॉडल जो हैं वो यूज किए जाते हैं. तो उसमें ये डिफरेंस इक्वेशन और अकोमुलेशन इक्वेशन जो है वो बहुत ज़्यादा यूज की जाती हैं. So this is about difference and differential equation. Next is some basic signals, right? So we are starting with the कितना टाइम हो गया? चलो ये हम नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ते हैं क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा CT सिग्नल, क्योंकि एक आर्टिकल कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो हो नहीं पाएगा पूरा, क्योंकि ये पूरा आपका जो है फर्स्ट CT यूनिट इम्पल्स फंक्शन 2 स्लाइड्स 3 स्लाइड्स तक जा रहा है, तो ये कवर नहीं हो पाएगा. इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. तो जैसे तन्वी ने पूछा था कि बुक्स के बारे में, तो मैं कुछ बुक्स के नाम जो है वो चैट बॉक्स में नोट लिख रहा हूँ, आप नोट कर सकते हो. ठीक है, एक मेरे पास PDF फाइल है सिग्नल सिस्टम की बुक की, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा. वो आप फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर नहीं फॉलो करना होगा तो मत करो, वो आपके ऊपर है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको इजी लगती है या फिर या टफ लगती है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि क्लासेस में हम उस बुक को फॉलो नहीं करते, जो हम ऑफलाइन क्लासेस लेते थे पहले उसमें कभी हमने ये बुक जो है फॉलो नहीं की. बट फिर भी रेफरेंस के लिए आप उसको जो है उस बुक को अपने पास रख सकते हो. उसका PDF फाइल मेरे पास है. तो
उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। तो पहली बुक जो मैं लिख रहा हूँ ये सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, टाइटल है सिग्नल्स एंड सिस्टम्स बाय तरुण कुमार रावत। सो दिस इज द फर्स्ट बुक, ठीक है, आप दिख रही होगा, लिखा चैट बॉक्स चेक करो, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स बाय तरुण कुमार रावत। ठीक है, इसका डिफिकल्टी लेवल जो है वो इसमें आपको इजी प्रॉब्लम भी मिलेंगी और टफ प्रॉब्लम भी मिलेंगी काफी। ठीक है, तो दोनों तरह का प्रॉब्लम आपको बुक में देखने को मिलेगा और काफी अच्छी बुक है। एक और चीज है, सिग्नल एंड सिस्टम की कोई भी बुक आप परचेज करते हो या पीडीएफ डाउनलोड करते हो, उसने सारे का सारा सिलेबस दे रखा हुआ है। कोई ऐसी बुक नहीं है जिसमें सिलेबस के फॉर्म में आप उसमें शॉर्टकमिंग पाओगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, सिलेबस जो है कंप्लीटली जो आपका थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है वो सारे की सारी बुक में मोर देन 90% जो है आपको मिल जाएगा। सिलेबस का कोई ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। कंसर्न मेनली ये है कि उसमें आपको समझ के कैसे आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका जो है वो ये इसका कवर है, दिख रहा है कवर, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, तरुण कुमार रावत। यस एनीवन, कोई बोलेगा भी? यश, ये कवर दिख रहा है आपको? ये बुक है ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की है, 640 के अराउंड इसकी, जैसे यहाँ प्राइस बता रहे हैं। तो आप अपने आसपास मार्केट में भी पता कर सकते हो अगर, क्योंकि अभी तो शॉप्स जो हैं वो खुली हुई हैं और आप जाके परचेज भी कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है तरुण कुमार रावत, और हर तरह का आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिलेगा इसमें, और लैंग्वेज जो है वो थोड़ी मीडियम है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि डिफिकल्टी लेवल जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का है, इजी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हैं और डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी हैं काफ़ी, और सॉल्व और अनसॉल्व दोनों दे रखे हुए हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे सिर्फ अनसॉल्व एग्जाम्पल, अनसॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ही हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स नहीं है। तो सॉल्व एग्जाम्पल्स भी काफ़ी दे रखी हुई हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो इसमें डिफिकल्टी लेवल जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का इजी टू टफ आपको मिल जाता है, मीडियम, इजी और टफ तीनों मिलते हैं, और लैंग्वेज जो है वो मीडियम है, समझने के लिए थोड़ा बहुत आपको एफर्ट करना पड़ता है। तो ये ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की बुक है, तो इसको आप रेफर कर सकते हो। ठीक है ना, इसके अलावा एक और बुक है, टाइटल इज लीनियर सिस्टम्स एंड सिग्नल, आई थिंक एक बार चेक कर लेता हूँ। लीनियर सिग्नल्स एंड सिस्टम्स बाय बीपी लाटे। तो ये सेकंड बुक है, मैं टाइप भी कर देता हूँ चैट बॉक्स में।
बीपी लाठी की बुक है लीनियर सिस्टम्स एंड लीनियर सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। सो ये भी आप परचेज कर सकते हो, प्रिंसिपल्स ऑफ लीनियर सिस्टम्स एंड सिग्नल्स। तो ये बुक बहुत अच्छी बुक है। इसकी लैंग्वेज जो है वो काफ़ी अच्छे से इन्होंने समझाया हुआ है पूरे सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के एक एक आर्टिकल को लेके, और बहुत ही बढ़िया बुक है। तो सिग्नल एंड सिस्टम्स में या लीनियर सिस्टम एंड सिग्नल्स में ये सबसे अच्छी बुक मानी जाती है। ये भी ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की है, और इसका प्राइस जो है वो इसमें जैसे 830 शो कर रखा है। तो ये भी आप परचेज कर सकते हो। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, जैसा मैंने चैट बॉक्स में भी लिखा है, आपने चेक कर लिया होगा, इसमें अनसॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, एग्जांपल्स नहीं दे रखी हुई, सिर्फ अनसॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ही हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग है कि आपको जो है वो नहीं मिलेगा, वो क्या बोलते हैं, एग्जांपल्स देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये इसका जो है वो सबसे बड़ा शॉर्टकमिंग है। ठीक है, तो फिर भी अगर आप रेफर करना चाहते हो तो इसको रेफर कर सकते हो। बट ये सबसे बड़ा शॉर्टकमिंग है। थ्योरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, जितना बढ़िया इसमें कर रखा है शायद और किसी बुक में नहीं कर रखा। बट प्रॉब्लम ये है कि समझने के लिए जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चाहिए, उनको सॉल्व एग्जांपल चाहिए, वो इसमें नहीं दे रखे हुए। तो ये इसकी शॉर्टकमिंग है। एक थर्ड बुक और है जो इसका नाम है, ये बाइले पब्लिकेशन की है, ये राजेश्वरी। यस, ये बुक है सिग्नल एंड सिस्टम्स बाय ए राजेश्वरी एंड वी कृष्णावेनी। ठीक है, ये थर्ड बुक है, ये भी मैं चैट बॉक्स में मेंशन कर देता हूँ। और इसमें जो मेन शॉर्टकमिंग है कृष्णावेनी में, ये एक वी कृष्णावेनी की एक सिग्नल एंड सिस्टम्स बाय सिग्नल्स एंड सिस्टम्स बाय ए राजेश्वरी एंड वी कृष्णावेनी, ये भी एक बुक है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। ये काफ़ी इजी है समझने के लिए, लैंग्वेज बहुत इजी है, काफ़ी अच्छे से आप ग्रैस्प कर सकते हो, बहुत इजीली समझ में आता है। इसमें सॉल्व और अनसॉल्व एग्जांपल्स दोनों ही दे रखी हुई हैं, सॉरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दोनों दे रखे हुए हैं। और एक ही इसमें शॉर्टकमिंग है कि इसमें बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, जो जैसे उस बुक में थे तरुण कुमार रावत में, आपको सॉल्व्ड एग्जांपल्स और अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हैं वो काफ़ी इजी भी मिल जाएंगे और काफ़ी डिफिकल्ट भी मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें ये थोड़ा शॉर्टकमिंग है, इसमें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, बहुत टफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो इसमें नहीं दे रखे हुए। ठीक है, काफ़ी इजी समझ लग जाती है, सब चीज़ें काफ़ी अच्छे से दे रखी हुई हैं। बट यही है कि इसमें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का जो लेवल है वो मीडियोकर लेवल है, मीडियम लेवल तक ही वो डिफिकल्टी लेवल है। जो काफ़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं या टफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो इस बुक में जो है वो ये किसी ना किसी तरह से ऑथर जो है छोड़ जाते हैं। तो ये इन 3 बुक्स हैं ज़्यादातर जो हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप इनमें से कोई भी फॉलो कर सकते हो, तो जो आपको ठीक लगता हो वो आप फॉलो कर सकते हो।
So, अगर आपने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। विनीत, आवाज कट के आ रही है शायद से। हमारे पास सिग्नल एंड सिस्टम की ओपन है। ओपन है, वो भी फॉलो कर सकते हो, अच्छी बुक है वो भी। सर उसका कोई ड्रॉबैक नहीं, वो मैंने पढ़ी नहीं इसलिए मुझे पता नहीं है, बट वो भी सिलेबस में मेंशन है, वो भी आप कर सकते हो। तो सिग्नल सिस्टम्स की कोई आपको, अगर आप सर्च करोगे तो इजीली आपको 8 टाइटल्स मिल जाएंगे अलग अलग पब्लिशर्स के। तो उसमें जो है वो सभी में फुल सिलेबस दे रखा हुआ है, कोई बुक ऐसा नहीं है जिसमें सिलेबस नहीं दे रखा हुआ। बस थोड़ा बहुत यही है कि किसी में थ्योरी जो है वो, जैसे कृष्णा वेरी में जो है वो थ्योरी जैसे बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए देनी चाहिए वैसे दे रखी हुई है। आपको जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट बताए गए हुए हैं किसी भी जैसे मान लो कि जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सिग्नल्स और सिस्टम्स के बारे में, तो जितना शॉर्ट में किसी स्टूडेंट को लिखना चाहिए वो बताया हुआ है। उसके पीछे का कंसेप्ट जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट होते हैं वो कई बार मिसिंग होते हैं, जो अजम्पशंस होती हैं वो मिसिंग होती हैं। तो ये वी कृष्णवेनी और ए राजेश्वरी का थोड़ा बुक का जो है वो शॉर्ट कमिंग है। और जो बाकी दो बुक्स हैं तरुण कुमार रावत और बीपी लाठी, जैसे बीपी लाठी में तो बहुत ही सिस्टमेटिकली लिखा हुआ है हर आर्टिकल के बारे में, तो वो काफी आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझा देते हैं उस बुक के थ्रू। तो ये उसका एडवांटेज है। ऐसा जो है इसमें ए राजेश्वरी और वी कृष्णवेनी में नहीं है। एक तरह से आप बोल सकते हो कि शॉर्टकट या डायरेक्ट थ्योरी जैसे लिखी होती है, आपने देखी होंगी काफी किताब में ऐसी, जिसमें सीधा डायरेक्ट थ्योरी लिख रखी होती है जो आप जल्दी से पढ़ो और जल्दी से समझ में आपको आ जाए और आपको ज्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, तो वो चीज है। बीपी लाठी में आपको थोड़ा माइंड अप्लाई करना पड़ता है और उसमें काफी जो जैसे कृष्णा वेनी और राजेश्वरी इसकी बुक में से कुछ आप पढ़ के समझ भी सकते हो, बट अगर आप कोई क्वेश्चन पुट अप करो कि ये इसमें ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा क्यों लिखा हुआ है, तो उसका आंसर आप नहीं मिल पाएगा आपको। ठीक है, अब उसके लिए आपको बीपी लाठी में जाके देखना पड़ेगा मे बी, या तरुण कुमार रावत की बुक में जाके देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो अगर बोला जाए कि जैसे आपको कहा जाए कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में जो है वो सैंपल्स के अकॉर्डिंग एडअप करना है, आप एक मतलब जो है वो थर्ड सैंपल को सेकंड सैंपल में ऐड नहीं कर सकते, तो ऐसा आपको लिखा राजेश्वरी में मिल जाएगा, आपको समझ भी इसलिए आ जाएगा कि नहीं करना चाहिए। इस तरह से मेथड भी पता लग गया, पर क्यों नहीं करना चाहिए और उससे क्या जो है उससे सिस्टम पे इफेक्ट पड़ सकता है, तो ये चीज आपको बीपी लाठी में ही मिलेगी। ठीक है, तो ये सब चीजें, या फिर जो चार्ज का कंसेप्ट दिखा था अभी हमने दिखा था माइनस इन्फिनिटी से टी तक लेके जा रहे हैं, वो राजेश्वरी में लिखा हुआ है सीधा ऐसे कि माइनस इन्फिनिटी से टी तक लेना है, और थोड़ा एक लाइन में भी बोला हो गया कि ये इनिशियल कंडीशन की वजह से है। पर क्या इनिशियल कंडीशंस क्यों ले रहे हैं, कहाँ पे लेनी चाहिए कहाँ नहीं लेनी चाहिए, इस पे जो है वो ए राजेश्वरी और वी कृष्णा वेनी की बुक जो है वो एकदम से मिस कर जाती है, क्योंकि ज्यादातर जो कंटेंट है वो बीटेक के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। क्योंकि उसको जब क्वेश्चन पुट अप किया जाता है तो उससे ये नहीं पूछा जाता किसी भी एग्जामिनेशन में कि ये क्वेश्चन आपको पुट अप किया है तो आपने इसका आंसर तो दे दिया, आप आंसर आपने बनाया कैसे, कैसे मिला, तो ये कभी ना पूछा जाता है ना उस पर वैल्यूएशन होती है। तो ये चीज इसमें रहेगी कि आपको इसमें थोड़ा ये शॉर्टकमिंग मिलेगी, जबकि बाकी दो बुक्स में ऐसा नहीं है। तो ओपन एम कभी पढ़ा नहीं क्योंकि रेफर नहीं किया, तो इसका आइडिया नहीं है। तो आप लोग देख सकते हो, ओपन एम काफी अच्छा बुक है वो भी, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं है। और कोई कुछ क्वेश्चन पूछना आपने? Yes, any other question? So, okay, thank you very much.